کہ شہر میں گیس بحران پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ سوئی ندرن گیس کمپنی نے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا فروقات میں 2-2 گھنٹے گیس فراہم کی جائے گی۔ جی ہاں، سردیاں آئی نہیں کہ گیس بحران پیدا ہو گیا ہے۔ شہر میں گیس بحران پیدا ہونا شروع بھی ہو گیا ہے۔ قدرتی گیس کے ساتھ ساتھ LNG مکس نہ کرنے پر بھی گیس بحران پیدا ہو گیا ہے۔ شہر بھر میں اس وقت گیس کی قلت ہے۔ سوئی نودرن گیس کمپنی نے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ شاہد ندیم سپرا موجود ہیں۔ شاہد سپرا، بتائیے گا کیا شیڈول جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، موسم سرما کے آغاز سے قبل ہی شہر میں گیس بحران پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس کے بعد سوئی نودرن گیس کمپنی کی جانب سے 24 میں سے 18 گھنٹے شہر میں گیس لوڈ شیڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ SNGPL کے پاس چونکہ اس وقت قدرتی گیس تو موجود ہے، لیکن جو صارفین کی جانب سے طلب ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ LNG اس میں مکس نہیں کی جائے گی، اور جب تک LNG قدرتی گیس کے ساتھ سسٹم میں مکس نہیں ہوگی، صارفین کو پریشر کے ساتھ گیس نہیں دی جا سکے گی۔ اس لیے جو شیڈول بنایا گیا ہے اس کے مطابق کھانا پکانے کے اوقات میں 3 مرتبہ جو ہے 6 گھنٹے کے لیے گیس صارفین کو دی جائے گی، اور اس میں بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان 6 گھنٹے کے دوران بھی کئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں پر پریشر کے ساتھ گیس فراہمی سوئی نودرن گیس کمپنی کے لیے ناممکن ہوگی۔ جو شیڈول بنایا گیا اس کے مطابق صبح 6:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک گیس ہوگی۔ اس کے ساتھ دوپہر کی اگر بات کی جائے تو 12 سے لے کر 2 بجے تک، اور شام میں جو کھانا تیار ہوگا وہ 6 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک۔ یہ شیڈول بنایا گیا ہے، اس پر اب آہستہ آہستہ عمل درآمد بھی شروع کیا جا رہا ہے، اور شہر کے مختلف علاقوں میں رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں جو گیس کی فراہمی اس کو بند کیا جا رہا ہے، اور تقریباً یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر کے سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئندہ چند روز کے بعد تھوڑا موسم جب تبدیل ہوگا، جب سردی میں اضافہ ہوگا، تو اس کے بعد یہی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرے گا، اور گھریلو صارفین کو SNGPL کے سسٹم سے گیس کی فراہمی ناممکن ہوگی۔ اور شکریہ، شاہد سپرا ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور سموک کی صورتحال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ لاہور شہر میں سموک کے ڈیرے ہیں۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 212 پر جا پہنچی ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ہم ان سے جانیں گے۔ کومل اسلم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، شہر لاہور میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی شہریوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ لاہور میں AQI 212 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کروں تو فیز 2 DHA 295، فیز 8 DHA 292، اسی طرح فیز 5 DHA 275، کوٹ لکھپت 252 اور جوہر ٹاؤن A بلاک میں 212 ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح مختلف ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر جو ہے وہ ماہرین شہریوں کو ہدایات کر رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ مختلف ریکارڈ کی جا رہی ہے اور شہریوں کی صحت پر بھی کافی زیادہ مضر اثرات کا باعث بھی بن رہی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آنے والے دن مزید کریٹیکل ہونے والے ہیں اگر شہریوں نے اپنی حفاظت کو یقینی نہ بنایا۔ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں خنکی محسوس کی جائے گی اور موسم اور درجہ حرارت میں بھی کافی بہتری ریکارڈ کی۔ بہت شکریہ کومل اسلم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گندم کی خریداری میں وفاقی حکومت کی رکاوٹ۔ گندم کے سٹاک میں کمی پر محکمہ خوراک نے نئی پیش گوئی کر دی ہے۔ نئی گندم کی خریداری نہ کی گئی تو متعدد اضلاع کا کوٹا منسوخ کرنا پڑے گا۔ روزانہ 18,000 میٹرک ٹن گندم کے اجراء سے سٹاک میں کمی آ رہی ہے۔ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رامی، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، گندم کے حوالے سے محکمہ خوراک پنجاب نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بریف کیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کل کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وفاق کو باقاعدہ اس پر ان کے اوپر الزام عائد کیا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب کو آئینی حق نہیں دے رہی کہ وہ گندم جو ہے وہ خرید سکے۔ تو پنجاب حکومت نے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کے حوالے سے باقاعدہ وفاقی حکومت سے ایک اجازت جو ہے وہ طلب کی تھی، لیکن وہ اجازت ان کو نہیں دی جا رہی۔ اب اس کے دوسری طرف محکمہ خوراک پنجاب نے باقاعدہ یہ پیشن گوئی کی کہ اگر وفاقی حکومت یہ رکاوٹ دور نہیں کرتی
तो इसके असरात पंजाब पर ये होंगे कि मुतअद्दिद अजला के, न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के मुतअद्दिद ऐसे अजलाओं के जहाँ पर जो एक कोटा सिस्टम है गंदम की रिलीज़ का वो मनसूख करना पड़ेगा, क्योंकि गंदम की खपत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इसका जो पर मंथ का कोटा है वो 16,000 से 18,000, 19,000 और 20,000 पर डे के हिसाब से जो है वो अब जारी होगा। और जैसे जैसे ये गंदम जारी होगी तो उनका जो मेन स्टॉक है पीछे वो भी कम होता जाएगा, और ये इस हद तक कम हो जाएगा कि माइनस में गंदम का स्टॉक जो है वो पंजाब के पास जो है वो रह जाएगा, अगर वफाकी हुकूमत ने गंदम की खरीदारी की इजाज़त जो है वो ना दी तो। अब इस पर दूसरी तरफ क्योंकि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मार्केट में आटे की कीमत जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से भी खासा दबाव है पंजाब के ऊपर। लिहाजा महकमा। बहुत शुक्रिया अली रामी, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि शहर के 9 टाउन्स के सब रजिस्ट्रार्स ने ई स्टैंप रूल्स 9 की खिलाफ वर्जी को मामूल बना लिया है। पंजाब ई स्टैंप एक्ट 2016 के रूल्स 9 और 15 की मुसलसल खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। हमारे साथ राव दिलशाद मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, शहर के 9 टाउन्स हैं जहां पर सब रजिस्ट्रार्स जो है वो शहरियों की रजिस्ट्रियों का अमल मुकम्मल करते हैं, जिसमें ई स्टाम्प पेपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि ई स्टाम्प को सबसे महफूज दस्तावेज समझा जाता है, लेकिन आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो ई स्टाम्प एक्ट 2016 है उसके रूल 9 और 15 की मुसलसल वायलेशन रिपोर्ट होने पर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिस दिया गया है और अहकामात जारी किए गए हैं कि किसी भी सूरत में जो स्टाम्प पेपर्स फरोख्त करने वाले जो स्टाम्प फरोश हैं उनकी ना सिर्फ तस्दीक और डीलिस्टिंग की तखीर जो है वो बर्दाश्त की जाएगी, बल्कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो नए अहकामात के मुताबिक अब डीलिस्टिंग और वेरिफिकेशन के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कमिश्नर लाहौर की वसातत से अरसाल करने के पाबंद होंगे तमाम सब रजिस्ट्रार, जबकि टेम्पर्ड जो स्टाम्प पेपर्स होंगे ई स्टाम्प पेपर्स उनको किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा और ऐसा करने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना अब आयद करना होगा। आपको ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीसी लाहौर को पाबंद बनाया गया है कि तमाम जो रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं वहां पर ई स्टाम्प के हवाले से वेरिफिकेशन और बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद हुसैन। और अभी आपको बताएं कि 2 करोड़ रुपए की लागत से छपाई गई 76,000 लाइब्रेरी बुक्स गायब हैं। 1 लीटर लाइब्रेरी बुक की छपाई पर 2500 रुपए लागत आई थी। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, बताइएगा। जी 2 करोड़ रुपए की लागत से 76,000 लिटिल लाइब्रेरी बुक इसी रूम्स के लिए बनाई गई थी, जो कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को फराहम की गई थी 2020 में। 2021 में भी जो है लाइब्रेरी बुक्स जो है वो बच्चों को फराहम की गई प्राइमरी स्कूलों में, लेकिन इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो 2020 में 10 और 2021 में 12 किताबें जो हैं ये फराहम की गई थी, ताकि जो नन्हे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूलों के वो लाइब्रेरी बुक से इस्तेफादा हासिल कर सकें और उनको अल्फ़ाबेटिकली और अलिफ बे पे की पहचान हो सके, इसलिए ये किताबें फराहम की गई थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये किताबें अब प्राइमरी स्कूलों से गायब हो चुकी हैं और बच्चों को पढ़ाने में शदीद मुश्किलात का सामना। और इस हवाले से जो साथी हैं प्राइमरी स्कूलों के, उन्होंने कहा है कि फिलफौर ये किताबें फराहम की जाएँ ताकि बच्चों को पहचान करवाई जा सके और बच्चों को पढ़ाया जा सके, लेकिन ये किताबें दस्तयाब नहीं हैं क्योंकि 2022 के तालीमी साल में ये लाइब्रेरी बुक्स फराहम नहीं की गई। तो साथी ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फराहम की जाए ताकि जो बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है इसको ना होने दिया जाए। और जो सूबाई वज़ीर तालीम ने दावा किए थे कि ये किताबें हर साल फराहम की जाएंगी और ये स्कूल में ही मौजूद रहेंगी, लेकिन इस वक्त कई स्कूलों में ये किताबें दस्तयाब नहीं। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि जो स्कूल्स हैं वो फौरी तौर पर अपनी डिमांड भिजवाएँ, 1 हफ्ते में ये किताबें जो है वो फराहम। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। डेंगू की सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि डेंगू वायरस के वार जारी हैं। 50 नए मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। अस्पतालों में डेंगू के कुल 361 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 24 घंटे में 1754 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। डेंगू के शहर भर में वार जारी हैं। 50 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अस्पतालों में डेंगू के कुल 361 मरीज ज़ेर इलाज हैं और 24 घंटों में 1754 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तलब कर दिया गया। जाली दूध की तैयारी में मुर्दा खानों के केमिकल की मिलावट का इंकशाफ हुआ है। कसूर रोड पर छापा मारा गया। जाली दूध बनाने वाला यूनिट रंगे हाथों पकड़ा गया।
आपको बता रहे हैं कि जाली दूध की तैयारी में मुर्दा खानों के केमिकल की मिलावट का इंकशाफ हो गया है। कसूर रोड पर छापा मारा गया है। जाली दूध बनाने वाले यूनिट को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, विजिलेंस विंग की इत्तला पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने कसूर रोड पे जाली दूध बनाने वाले एक यूनिट में छापामार कार्रवाई की है और मौका पर तैयार 20,500 लीटर दूध है जो कि कब्जा में लेके तलब कर दिया गया है। 50 किलो स्किम्ड मिल्क है और 32 लीटर ऑयल और केमिकल्स हैं जो कि इस यूनिट से बरामद हुए हैं और दूध की तैयारी में ये केमिकल्स जो हैं इस्तेमाल किए जाने थे। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पे 7 मुलजमान जो कि यूनिट में मौजूद थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एक को मौका से पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने गिरफ्तार करवा दिया है। यूनिट से रोजाना की बुनियाद पे 20,000 लीटर से जायद नाकस दूध तैयार करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि जाली दूध को असली दिखाने के लिए ग्वालों वाली ड्रमियों में ये दूध जो है वो सप्लाई किया जाता था और सफेद जहरनुमा महलूल इंसानी जिस्म में मैदे और कैंसर जैसे अमराज का सबब बन सकता है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक ने गुज़श्ता रोज डोर टू डोर कैंपेन करने का भी ऐलान किया था और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि बहुत जल्द वो मुहिम का आगाज करेंगे, जिसमें मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा, डोर टू डोर मुहिम का। बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे। तफसीलन आपको बताएं कि वजीर आला का पुलिस की वर्दी तब्दीली का दावा धरा का धरा रह गया। 2.5 लाख ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। अली साही हमारे साथ हैं, तफसीलात हम उनसे जानेंगे। जी अली साही। आज बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म को डाकिए का यूनिफॉर्म करार देकर इसको तब्दील करने का कहा गया था, लेकिन इसमें तब्दीली तो नहीं आई। लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से पहला मरहला ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए मुकम्मल कर लिया गया है। 2.5 लाख से ज़ायद यूनिफॉर्म जो हैं उनकी खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन के अमल में 10 में से 4 कंपनियों ने प्री क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें अर्शद ब्रदर्स हैं, एक्सेल, सरीना और निशात कंपनी कामयाब करार पाई हैं। इन तमाम के डॉक्यूमेंट्स कांट छांट के लिए टेक्निकल कमेटी को भिजवाए गए हैं। वहाँ से मंजूरी के बाद अगला अमल होगा और उसमें फाइनेंशियल बेट दी जाएगी। जो कंपनी कम रेट देगी उसको कॉन्ट्रैक्ट अलाट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आईजी पंजाब की जानिब से 7 कंपनियां भी ख़रीदारी के अमल के लिए तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें 7 कंपनियों के सरबराहान जो हैं वो DIGs और SSP रैंक के अफसरान हो गए। वो तमाम जो मुतलका कंपनियां होंगी और 3 अरब से ज़ायद की वर्दी समेत दीगर जो ख़रीदारी होगी उस तमाम के तमाम अमल को मोनीटर करेंगी और किसी भी कंपनी को अगर कोई ग्रीवियंस होंगे तो वो भी इन्हीं कंपनीज़ को अपनी इन्हीं जो कमेटीज़ हैं इनको अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। तो आईजी पंजाब की जानिब से पंजाब पुलिस के मौजूदा यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जल्द ही अगले मरहले में जो कंपनियां फाइनेंशियल बेट देंगी। बहुत शुक्रिया अली साही, आपने हमें अपडेट किया।